In the last class, we have seen the request and the response cycle, right? So let's come back to some of the theories again, and then we will revisit the same diagram, and we will try to understand more on that. This lecture note that I'm creating basically consists of more of the theoretical part. So at the end of the session or in sometime after every 2 or 3 weeks, I'm going to share the content so that you can review the theoretical part of it. Okay? So the first topic actually in your syllabus is history of World Wide Web. As you can see, the World Wide Web is a system of intellect hypertext document, okay, that are accessed via internet, right? So it has got a lot of things when we talk in context of a web page that uses HTML, XML, CSS, JavaScript. These are the some that we have named yesterday also, and the there is something called as a URL, which is a type of address that is used to recognize a resource uniquely, right? Some of the web browsers, as you are familiar with, are Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, and many others like Edge. It's again from Microsoft. So there is a little history that I have noted down over here. That World Wide Web was created in 1989 by Sir Tim Berners-Lee. Okay, and he has not only just created the concept of World Wide Web, but also he has created the first website, and he has hosted it in somewhere around mid 1990s, and he has created the first browser also to support that, because of course a web page or a website that contains the web page must be accessed through a browser, right? He has also created a small server for it, the first fundamental basic server, and interestingly that particular page is still alive. Okay, so you can just go on this page and look upon some of the information of that first effort that was made by Tim Burley, first step, right? So this is some of the historical portion. I won't be getting much deep into it. You can just read it and you can go through it. Okay. So coming back to the URL, as we know that the domain name is mapped to a URL, right? Like for example, if we talk about google.com, so that google.com is a unique domain name. That means no one else in the world, if you acquire a domain name, no one else in the world is going to have the same name, right? Because it is mapped to a unique IP address. For example, if you want to my system, this machine is it is possible that it might be connected to a local area network within the Jamia Hamdard. But of course, if I have got the internet connection, it is connected to World Wide Web. No doubt in it, right? इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है, right? So, for example, if I just open my command prompt and I give the command ns lookup, sorry, ठीक है, google.com, you see, it's looking up to the domain name server and it's actually giving me the IP address of google.com. I can also ping, just like I ping in a network, a local area LAN, then the same way I can ping google.com also. Say, for example, if I say ping google.com or google.co.in, whatever you like, it will have google.co.in will have a different address because it's a different domain name, right? So you can see it's pinging and I'm also getting the reply, right? And what you're seeing here is the IPv6 IP address, right? And here it is the IPv4 version, the older, right? So now going further to the domain name or the URL rather. Acha, who maintains the World Wide Web? The first question. No, it's not like an organization, right?
If you have got a, if you're talking in the context of Jamia Hamdard, it's in the LAN, local area network, and then there's someone who is administrating all those things, right? But worldwide web is something which is open, right? So there is a organization ICANN, and this is the one which is responsible for managing the most top level domain. Okay, that is called as TLD, top level domain, right? And it's basically includes the assignment of domain names to specific organizations, okay, which are called as registrars and the registries. So registries are the particular entries of the domain name. They are mapped to some organization, some person, along with the assigned IP address. These are called the registries. Okay. And registrars are the servers governed by some organizations which provide these registries to the people. So, for example, if you want to go and purchase a domain name, so for example, you might reach to GoDaddy.com, for example, and you can get a domain name from there. So, they will behave like a registrar, and your entries, your details, along with the domain name and the IP address, these are the registries which are in that in the scope of that registrar. So, it's a kind of a registrar, a kind of a database which hold all the registries. Okay. So, the top level, this domain name resolver, the server, that is the DNS server, actual DNS server, the top level, right, is managed by ICNN, which further tries to figure out from different registrars in which domain the particular IP address might be, or through which the IP address might be registered. Okay? And it may figure out the real IP address, and then the whole thing is translated to that particular website or the resource that you are looking for. Okay? Clear? है? Now, the whole communication between a client, which is a web browser, right, where you type the URL, and the server, which is a hardware machine, with a software server, which is actually containing your application or the website. This whole communication is done through a protocol called as HTTP, Hypertext Transfer Protocol, and the secure version of this protocol is called as HTTPS, right? Okay. So the same way we have got HTML, hypertext markup language which is in the context of hypertext. That means the text that refers to the another page, they are linked together, right? Similarly, the protocol, and what is the meaning of the protocol? Rules, set of rules. Okay. Uh, Everything is governed by certain rules, right? Okay. So how the client and the server are going to interact? Okay. There is a certain set of rules. That means if the client says, if I give such and such instruction with the name of a say a PDF file, okay, you have to, the server has to provide the same resource back in the terms and condition as governed by or as defined by the HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Okay, okay. When it goes to the HTTPS, that means that has to be a security layer has to be added, and everything has to be encrypted over there. ठीक है, clear होगी बात? So So these are the steps actually that I have tried to put together, that how the top level DNS it consults the registrars, and then finally the whole of the thing is resolved. The whole step is mentioned. You can just give it a point number 1 2 3 and so on. Step number 1 2 3 you can find in the document. Okay. Now this is how the URL looks like. Okay. Scheme basically means to the protocol, either HTTP or HTTPS. We have only these two protocol as of now in for World Wide Web. Otherwise, FTP file transfer protocol is again there for the network, local area network. SMTP, simple mail transfer protocol. There are many other protocols, right? But for the web communication, if we talk, we are talking about HTTP or HTTPS, right? Then we have got host. Host is what? Either the domain name or the IP address, google.co.in, or the corresponding IP address of google.co.in.
This both is separated by a colon and double slash. I'm just going through the basic because this is the part of your content. Okay, ठीक है. Then you have got port. What is port? Hmm? The logical address on which the server machine, the software on the server software on the server machine is listening to. ठीक है, आपको बताया था कि एक सर्वर हार्डवेयर होता है, उसके अंदर सर्वर का सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर आप वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं, यानी डिप्लॉय करते हैं, पुट टू वर्क करते हैं. वो पुट टू वर्क करने का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्टरी में सर्वर इंस्टॉल्ड है, सॉफ्टवेयर सर्वर, उसके अंदर एक और कोई डायरेक्टरी होगी जिसके अंदर आप अपने एप्लीकेशन को फिजिकली प्लेस करते हैं. ठीक है, और सर्वर एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, देन इट विल स्टार्ट वर्किंग. ठीक है, तो किसी एक पार्टिकुलर पोर्ट पे वो सुनता रहता है, यानी एक लॉजिकल डेस्टिनेशन है जिसपे वो सुनता रहता है. तो आई हैव गिवन द एग्जांपल, like for example Tomcat is one of the well known server, right? And it's a web container in fact, and the port that we use is 8080. ठीक है, 8080. अब जैसे हम ऐसे कहते हैं, से फॉर एग्जांपल google.co.in, तो यहाँ कुछ पोर्ट नंबर नहीं दिया हमने, है ना. गूगल पेज आपका खुल करके सामने आ जाता है. अगर हम इसको ऐसे दे दें, कॉलन से फॉर एग्जांपल 80, नॉट 808, 80. ठीक है, ठीक है. तो नॉर्मली होता क्या है, 80 या 8080 भी अगर हम देना चाहें तो 8080 स्पेसिफिक फॉर द टॉपकैट. अदरवाइज द डिफॉल्ट पोर्ट इज 80. ठीक है, अगर हमने कुछ भी, जैसे यहाँ पे 80 हमने लिख करके बताया कि यहाँ पे 80 हम लिख सकते हैं. अगर हम 80 नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो भी सर्वर पे इस डोमेन नेम पर आपका जो सर्वर मशीन है, उस सर्वर मशीन में जो सॉफ्टवेयर है, बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लिया जाता है कि वो 8080 पे या किसी और सर्वर स्पेसिफिक पोर्ट पर, डिफरेंट कंपनी के अलग अलग सर्वर हो सकते हैं, राइट? तो उनके अलग अलग पोर्ट हो सकते हैं, डिफॉल्ट पोर्ट हो सकते हैं. वो डिफॉल्ट पोर्ट पे न लिसन करके 80 पर लिसन कर रहा है. ठीक है, तो किसी भी सर्वर में ये पॉसिबल है कि आप सेटिंग को चेंज करके उसके डिफॉल्ट पोर्ट को चेंज करके पोर्ट नंबर 80 पे लिसन करवा सकते हैं. मगर उस वक्त क्या होगा, पोर्ट नंबर 80 पे अगर लिसन कर रहा है तो इसका मतलब पोर्ट नंबर 80 पे कोई एक सर्वर ही लिसन कर सकता है. ठीक है, फाइन. नाउ देन स्लैश पाथ. ठीक है, जैसे आप कई बार देखेंगे, आप किसी एक लिंक को क्लिक करते हैं, पूरा एक पाथ लिख करके आता है, एक डायरेक्टरी लिख करके आती है. दैट इज द पाथ इन द रूट ऑफ द प्रोजेक्ट. हाँ, उसको कहते हैं जो प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल होती है बाय डिफॉल्ट फाइल, जो कल पिछली बार हमने बात करी थी, वो रूट डायरेक्टरी में होती है. ठीक है, रूट डायरेक्टरी के वेब कंटेंट के अंदर होती है. ठीक है, रूट डायरेक्टरी के अंदर अगर डायरेक्टरीज आपने सब डायरेक्टरीज बना रखी है तो वो आप पूरे पाथ से स्पेसिफाई करेंगे. ठीक है, अलॉन्ग विद द रिसोर्स नेम, चाहे वो एचटीएमएल पेज हो या फिर पीडीएफ पेज हो या कुछ भी हो. ठीक है, देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. अक्सर आप देखते हो क्वेश्चन मार्क आता है. ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बाद एक क्यूरी बनती है, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं की एंड वैल्यू पेयर के फॉर्म में. ठीक है, जैसे नेम इज इक्वल टू शाह. ठीक है, एंड बीच में होगा, पासवर्ड इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग, है ना. तो ये जो चीज होती है इसको हम बोल रहे हैं क्या है, क्यूरी है. ठीक है, ठीक है, और ये इसलिए नजर आती है, बाद मरतबा आपको नजर आती है, बाद मरतबा नजर नहीं आती है. अगर नजर आती है तो इसका मतलब ये है कि जो ब्राउजर है, ब्राउजर ने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, किस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, एचटीटीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सर्वर से कहा है कि गेट मी दिस रिसोर्स by a method that is known as get get, by a method which is known by get get. ठीक है, तो क्या होगा, उसमें जो भी पैरामीटर, यानी फॉर्म आपके पास जो है, फॉर्म के जो भी पैरामीटर है, अगर 10 फील्ड है तो 10 पैरामीटर. ठीक है, वो सारे के सारे आपको ब्राउजर में, ब्राउजर बार में नजर आएंगे
सेपरेटेड बाई %, ठीक है, आफ्टर द क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फाइन। अगर ब्राउजर रिक्वेस्ट ऐसे करता है, ओके गिव मी दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन थ्रू द पोस्ट मेथड ऑफ एचटीटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है, ये जस्ट मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। सिलेबस में हमारे पास इतना ज़्यादा एचटीटीपी को डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हिंट दे रहा हूँ कि आप अगर कह रहे हैं कि ब्राउजर कह रहा है कि गिव मी दिस इंफॉर्मेशन थ्रू द पोस्ट मेथड, ठीक है, अब सर्वर के पास जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उसको पोस्ट मेथड के से देना है। तो अब ये अब क्लाइंट और सर्वर दोनों पे बाइंडिंग हो गई कि देयर वाज अ गेट मेथड, एक तरीका, मेथड का मतलब यहाँ तरीका, ठीक है। तो गेट मेथड से क्या था, क्लाइंट ने कुछ चीज हाइड नहीं करी, जो भी फॉर्म की इन्फॉर्मेशन थी, आपने फॉर्म भरा था, वो फॉर्म की इन्फॉर्मेशन ब्राउजर पे डिस्प्ले हो रही यूआरएल बार, हाँ, उसको आप बुकमार्क कर सकते हैं, यानी अगली बार बिना फॉर्म भरे भी अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसी जगह आपका इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अब किसी बुकमार्क के पेज को देखो, उसमें क्वेश्चन मार्क के बाद अगर कोई चीज होती है तो वो इसी इंडिकेशन के लिए होगी कि साथ में आप क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं एक रिसोर्स के लिए, ठीक है। तो बुकमार्क कर सकते हैं अगर आप गेट मेथड चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्राउजर बता रहा है, और फिर ब्राउजर यूआरएल से उसको हाइड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ब्राउजर ने कहा है कि मैं पोस्ट मेथड से मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए या ये रिसोर्स चाहिए, तो अब ब्राउजर पे ये बाइंडिंग आ गई कि अब वो चीज जो है वहां पर यूआरएल बार में आपको जो पैरामीटर जो क्यूरी का पार्ट थे वो अब नजर नहीं आएंगे, नहीं शो करेगा। कभी आपने देखा है कि आप यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं उसके बाद वो शो कर रहा है? कभी नहीं करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उस जगह पे आपको क्या यूज करना है, पोस्ट यूज करना है, ठीक है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। वो पीछे कोई बंदा मेरे जिसको बोलते शेडोइंग, कोई कंधे पे खड़ा है मेरे पीछे खड़ा है, तो वो देख करके अगर वो नजर आने लगे तो देख के समझ जाएगा इस साइट के लिए इसका यूजर नेम पासवर्ड क्या है। हाँ, मतलब कोई भी बंदा मेरे पीछे जो खड़ा है आगे खड़ा है वो देख करके विजुअली उसको नजर आ जाएगा। नाउ इन दिस केस जो एचटीटीपी का जो मेथड ब्राउजर यूज करेगा, वो एक्चुअली आप एचटीएमएल पेज में आप खुद लिख करके बता रहे हैं ब्राउजर को कि क्या यूज करना है, ठीक है, वो एचटीएमएल पेज में आप खुद लिख करके बता रहे हैं, कोई और नहीं बता रहा है। ब्राउज़र का काम तो एचटीएमएल को इंटरप्रेट करना है ना। जब वो इंटरप्रेट करेगा फिर आप सबमिट बटन को प्रेस करेगा, सबमिट बटन में जब वो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास, तो आपने ऑलरेडी इसको एचटीएमएल पेज के अंदर ही लिख के बता रखा है कि इस पेज के सबमिशन जो होना चाहिए, ये पोस्ट एचटीटीपी के पोस्ट मेथड के थ्रू होना चाहिए। तो क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र हाइड कर देगा और क्या करेगा, रिक्वेस्ट के जो पहले जब हाइड नहीं कर रहा था तो रिक्वेस्ट के हेडर में डाल के भेज रहा था उसको, अभी क्या करेगा, रिक्वेस्ट की बॉडी में डाल के भेजेगा। इट विल सेंड द इन्फॉर्मेशन इनसाइड द body of the request. Similarly, when that particular request is received by the server knows from the information that is provided by the browser along with the resource request that he has requested the conversation by following the post method of the HTTP protocol. ठीक है? Now what server will do? It will not send any information in the header. It will also embed the whole of the HTML response in the body of the response, ठीक है, ताकि वो भी सिक्योर रहे, ठीक है। So there are certain conditions when you will prefer to use a get method of the HTTP protocol. For example, if you want just a quick response, a quick reply, ठीक है, from the server without any you don't have a fear of any security threats or anything like that, ठीक है, then you can use the get method. Otherwise, you will use the post method. There are several other methods also, ठीक है, there are several other methods also. So I just gave an introduction to the methods of HTTP protocol just to make you understand that a protocol is a set of rules, right? And that set of rule means it governs how the client and the server are going to communicate. ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये फ्रैगमेंट आपने देखा होगा कई जगह। फ्रैगमेंट का मतलब इफ यू क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर लिंक, it will automatically land you to some of the section of the same page, ठीक है। कई बार आप देखेंगे कई सारे लिंक हैं कि अबाउट का एक अलग लिंक है, फिर उसके बाद हाउ टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, हाउ टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, अलग अलग लिंक है। एंड व्हेन यू ट्राई टू क्लिक ऑन द लिंक्स, इट विल टेक यू टू, इट विल नेविगेट यू टू द सेम एचटीएमएल पेज एवरी टाइम बट ऑन डिफरेंट पैराग्राफ्स, दैट मीन डिफरेंट सेक्शंस। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द फ्रैगमेंट, ठीक है, क्लियर हो गया।
पूरी चीज। अब दिस इज द एग्जांपल, www.example.com. This is a name that anyone can use without a copyright. Uh, then 8080, if I am assuming that the server is listening on the 8080 port and not on the default HTTP port, that is called as 80 is called as default HTTP port. Okay? It's not listening on the default HTTP port. Then that case, it's listening on 8080. Maybe it might be a time Tomcat server. Then the path, and then resource name. Then these are the parameters. Key 1 is equal to value 1, key 2 is equal to value t 2, and so on. And then after the hash symbol, you have got section 2, section 2 of the page, for example, right? So that's a fragment, right? तो इसी को एक्सप्लेन नीचे भी थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट में किया है, इसको आप यूज करेंगे। एचटीटीपीएस के लिए जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है दैट इज 443, जस्ट लाइक एचटीटीपी के लिए क्या होता है, 80 होता है, ठीक है। एचटीटीपी के लिए वो डिफॉल्ट पोर्ट जो होता है 80 होता है। अब जैसे कोई भी साइट ब्राउज करते हैं ना, नॉर्मली यू डू नॉट प्रोवाइड 8080, because if you do not provide 8080, that means it is assumed that the default port of HTTP is where the server software is listening, which is port number 80, ठीक है। Okay, so coming back to that diagram that we've drawn yesterday, क्या बात है? इंटरनेट की इशू लग रही है। शायद ये चल नहीं रहा, बैटरी हो गई होगी। एनीवेज, अब ऐसे देखो, this is what we did yesterday, right? So this is the whole context. This is the server hardware, ठीक है। This is server software, उंगली से लिख रहा हूँ तो पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ, आप अज्यूम कर लेना, ठीक है। एंड दिस इज योर एप्लीकेशन और वेबसाइट, ठीक है, जो कि सर्वर के अंदर है, ठीक है। यानी सर्वर के इंस्टॉलेशन फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर बना हुआ है जिसमें उसको आपको फिजिकली प्लेस करना है, उसके अंदर होने का यही मतलब होता है, ठीक है। एंड हियर इज योर कंप्यूटर, इसमें आपके पास ब्राउजर है। नाउ यू मेक द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, राइट। अभी तक मैं इसको रिक्वेस्ट कर रहा था, अब मैं इसको बोलूंगा एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है। और जो रिस्पॉन्स आएगा उसको क्या बोलूंगा, एचटीटीपी एचटीटीपी रिस्पॉन्स, ठीक है। सो दिस इज द होल एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल, ठीक है। अब एक बार ये जो कम्युनिकेशन हुआ, उसके बाद सर्वर भूल जाता है ये क्लाइंट कौन था, ठीक है। जैसे आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन पेज के बाद उसने इनबॉक्स वापस कर दिया, अब दोबारा आप किसी मेल को खोलना चाहेंगे, वो सेकंड रिक्वेस्ट है, दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड रिक्वेस्ट ऑन अनदर रिसोर्स व्हिच इज अनदर एचटीएमएल, ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी द डायनामिक पेज, क्योंकि वहां पे जाएगा डाटाबेस से उस ईमेल आईडी के करस्पॉन्डिंग जो टेक्स्ट है इंफॉर्मेशन, उसको निकाल करके एक फॉर्मेटेड वे में आपको रिटर्न बैक कराया जाएगा एचटीएमएल में, राइट। So that's again a dynamic HTML response. It's a dynamic HTML response. But in this case, when the request is sent back for the second time to the server says, I don't know who you are.
ठीक है, ऐसे तो पहचानेगा नहीं। तो और हर पेज पे यूजर नेम पासवर्ड तो आपसे पूछेगा नहीं हर बार, है ना? तो वो यूजर नेम पासवर्ड जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अब की बार ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि आपका ब्राउजर सेकंड रिक्वेस्ट में भेज रहा है, सेकंड रिक्वेस्ट में भेज रहा है, राइट? फाइन। अब जब सेकंड रिक्वेस्ट में ये भेज रहा है तो ये कहाँ से उठा के भेज रहा है? जब पहली बार आपने लॉगिन किया तो उसने इस इंफॉर्मेशन को फाइल सिस्टम के अंदर एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में या किसी फ्रेगमेंट के फॉर्म में उसने सेव कर ली। उसको हम बोलते हैं कुकी। ठीक है? दोबारा जब आपने एक मेल पे क्लिक करा, तो उसने उसी कुकी से वो इंफॉर्मेशन को निकाला, ठीक है? फाइन। और उसको इनफैक्ट कुकी से भी नहीं निकालता है, जब तक ब्राउज़र ओपन है तब तक तो कैश से निकाल लेता है। उसका अपना कैश मेमोरी होती है, वहाँ से निकाल लेता है। एक बार ब्राउज़र क्लोज़ करके दोबारा ओपन जब करते हैं तो डायरेक्टली अगर इनबॉक्स में जाता है, तब वो कुकी से उठाता है। फैक्ट ये है, ठीक है? तो वो उठा करके वो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है ब्राउज़र के पास। और दैट इन्फॉर्मेशन एक्ट एज़ अ टोकन फॉर द रिकॉग्निशन। जैसे अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो क्या करते हैं? अपनी कार लेकर के आप गए, कार आपने डेस्क पे छोड़ा, मतलब एंट्री पे छोड़ा, वो वर्ल्ड पार्किंग में आपने उससे आपने टोकन दिया, राइट? और जब वापस आएँगे तो इतने सारे कस्टमर अंदर आ रहे हैं, वो कैसे पहचानेगा? उस टोकन से पहचानेगा, राइट? ठीक है? तो सिमिलर काइंड ऑफ पूरा मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ भी होता है। इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से जा रही है सर्वर के पास, नेक्स्ट टाइम जब वही सेम क्लाइंट रिटर्न होके आ रहा है, तो इट विल पास अ काइंड ऑफ अ टोकन, ठीक है? बट जस्ट रिमेंबर दैट every request and response cycle is independent of any previous request and response cycles. So that brings us a important point. One of the one of the uh, underlying principles of HTTP protocol, and that says HTTP protocol is stateless. क्या है वो? स्टेटलेस है। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब मेमोरी को रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी, यानी पुरानी पास्ट जो कुछ हुआ है कन्वर्सेशन, उसको रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी, है ना? किसी ने कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है? उसकी है। तो आप क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट हैज स्टेट एंड बिहेवियर, कहते हैं ना? एन ऑब्जेक्ट हैज अ स्टेट एंड बिहेवियर। व्हाट डज स्टेट मीन देयर? Entity is again another phrase used for the object at a particular instance of time, right? ठीक है ना? इंस्टेंस भी तभी इसीलिए कहते हैं, राइट? तो स्टेट का मतलब क्या हुआ? जो भी वेरिएबल्स उनकी हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो उनका स्टेट है, यानी जो उनकी वैल्यूज है, so there is something, a kind of container which is used to remember the information, ठीक है? तो सेम कंटेक्स्ट में थोड़ा सा सिमिलर कंटेक्स्ट में आप समझेंगे कि अगर आप कह रहे हैं कि HTTP is a stateless protocol, that means there is nothing within the HTTP rules that which is going to mandate that if the client is requesting for the second time, then that information will be recognized by the server. So that's why it's an additional thing, an add-on thing, that some kind of information is maintained either through cookies or some other techniques. That's techniques, right? So one thing that you know about HTTP is a stateless protocol. And the second important thing that you have to know about HTTP is a text-based protocol. ठीक है? ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा, फंडामेंटल है प्रोटोकॉल का, एचटीटीपी प्रोटोकॉल का। एचटीटीपी इज अ टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। पहला क्या था? एचटीटीपी इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, ठीक है? टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन जो होता है उसमें इंफॉर्मेशन जो पास होती है दैट इज कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, इवन यू टाइप योर एज व्हिच इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, ideally it will be sent in the form of a 34, say for example age, as 34 text. So that means on the server side, when you write a program either using C++ or Java or anything else, you will have to literally convert that 34 text to a numeric form to do some computation. फॉर एग्जाम्पल, आप चेक करना चाहते हैं कि एक आदमी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, तो उसकी एक सर्टेन हायर या लोअर एज लिमिट होगी, तब वहां पे उसको लेस देन या ग्रेटर देन चेक करना पड़ेगा ना। इट्स अ मैथमेटिकल कंपटीशन, राइट? इट्स अ
मैथमेटिकल चेक, राइट? अब उस कंडीशन में उसको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, लेकिन बट बिकॉज HTTP is a text based protocol, so the communication which is happening is in the form of text that has to be converted over there again to the numeric form for any computation. तो दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं HTTP प्रोटोकॉल, वन इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, द अदर इज अ टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, इतनी चीज याद रखा आपने तो काफी कुछ आप उसके बारे में जान गए। ठीक है, लेट्स सी एक सिंपल एग्जांपल ऑफ HTML। ठीक है, देखिए यू मस्ट हैव हर्ड HTML एंड HTML5। ठीक है, HTML5 इज वन ऑफ द most latest versions of HTML that gives you lots of flexibilities, advanced features. It allows you to do a lot of good work without using the third party interfaces। ठीक है, इसमें मैंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन उसमें दे रखे हैं जो डिफरेंसेस बताएगा आपको HTML और HTML5 का एट अ बड़ा लेवल। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डॉक टाइप HTML, just HTML। Now this is the first thing with which you can recognize that I am trying to write a HTML document, HTML5 document in fact। ठीक है, अदरवाइज पुराने जो HTML डॉक्यूमेंट थे उसमें लंबा चौड़ा एक पूरा टेक्स्ट होता था। ठीक है, नाउ इट स्टार्ट्स विद अ टैग, जो भी लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के अंदर है दैट इज कॉल्ड एज अ टैग। तो HTML इज अ टैग बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज, राइट? तो HTML टैग, अगर कोई टैग शुरू होता है तो वो टैग खत्म भी होगा। ठीक है, यानी HTML यहाँ से शुरू हुआ तो स्लैश सिंबल के साथ वो खत्म होगा। उसके बाद क्या हुआ, हेड आपका शुरू हुआ। ठीक है, हेड मतलब हेडर, हेड यहाँ क्लोज हुआ। हेड के अंदर आप टाइटल डिफाइन कर सकते हैं। टाइटल यहाँ शुरू हुआ, टाइटल यहाँ खत्म हुआ। टाइटल क्या आपने डिफाइन किया एक टेक्स्ट के फॉर्म में, माय सिंपल HTML पेज, राइट? देन कम्स द एक्चुअल बॉडी। द बॉडी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज जो कुछ बॉडी में है वही आपको स्क्रीन पे इंटरप्रेट होकर के उसका रिजल्ट नजर आएगा, राइट? द बॉडी सेज H1 यानी हेडर, हेडर साइज 1, वेलकम टू माय वेबसाइट, हेडर 1 क्लोज्ड। ठीक है, नाउ पैराग्राफ। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि अब कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लंबा चौड़ा लिखना है, कुछ लाइन लिखनी है तो आप P के अंदर लिखेंगे। स्टार्ट हो रहा है, क्लोज हो रहा है, इसके अंदर आपने लिखा दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, राइट? देन अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ये शुरू हो रही है और लिस्ट यहाँ खत्म हो रही है। अगर एक लिस्ट है तो लिस्ट के अंदर आइटम्स होंगे, राइट? तो क्या कहेंगे, लिस्ट आइटम्स, LI। ये शुरू हो रहा है, लिस्ट आइटम खत्म हो रहे हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई आप कोई वेब पेज बना रहे हैं कुछ सामान सेल करने के लिए, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे ग्रोसरी हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका से फॉर एग्जांपल आपका मेडिसिन हो गई, इधर आपकी बुक्स हो गई। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो मेक दिस हाइपरलिंक because grocery is a general thing, so probably you might be willing to get into a page which gives you the detail of all the available groceries, so you can make it hyperlink also। ठीक है, तो ये अभी तो सिंपल, अभी हाइपरलिंक नहीं है, अभी सिंपली ये क्या है, लिस्ट, लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, देन you can embed image। when you put image with the img uh, tag, then you have to specify the source of the image। you can specify the whole path also। ठीक है, or if it is in the same root directory where this HTML page is available, ठीक है, then you can say just the name of the image like image.jpg, right? Alternate is one of the parameter of image that says if this image is somehow missing in that directory, that folder, then instead of showing the image, show this text in place of that image, example image, right? अगर इमेज है तो इमेज शो करेगा, वरना इमेज अगर नहीं है तो इमेज की जगह ये टेक्स्ट शो करेगा। अल्टरनेट, ठीक है, सिचुएशन में क्या करेगा वो। ठीक है, क्लियर है? Now this is anchor that that basically provides a hyperlink reference to some URL। ठीक है, now that will be underlined ताकि आपको पता चले कि आपको वहाँ क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना चाहिए। इनफैक्ट इस तरह का कोई लोकेशन नहीं है,
www.example.com मैंने ऐसे डाल रखा है, ये लोकेशन नहीं है, एग्जिस्टिंग लोकेशन नहीं है। आप इसकी जगह www.jamiahmza.ac.in कर लें और क्लिक करेंगे तो आपको फिर jamiahmza.ac.in के पेज पर ले जाएगा फिर एक्चुअली, ठीक है। और इसका आपने कहा कि विजिट एग्जाम्पल डॉट कॉम, इसका जो है टेक्स्ट आएगा जिसके नीचे अंडरलाइन होगा और क्लिक करने पे जाएगा इस साइट पर, ठीक है। जो टेक्स्ट नजर आएगा वो ये नजर आएगा, जो अंडरलाइन टेक्स्ट नजर आएगा, ठीक है। और जाएगा उस एड्रेस पर, राइट। बॉडी क्लोज हुई, एचटीएमएल क्लोज हुआ, ठीक है। इसी को मैंने ऑलरेडी एक फाइल में प्लेस कर रखा है। फर्स्ट एस्टिमेट पेज डॉट एचटीएमएल, ठीक है। देखिए, इसका मैं सोर्स आपको यही दिखा देता हूँ, साथ में खुला रहेगा। क्या कह रहा है, एचटीएमएल शुरू हुआ, हेड के अंदर माई सिंपल एचटीएमएल है ना, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, टाइटल जो दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज, ठीक है। ये बॉडी के अंदर नहीं दिख रहा है, ये आपको ब्राउजर के इंफॉर्मेशन में दिख रहा है, ठीक है। फिर आपने कहा वेलकम टू माय वेबसाइट, हेड वन अच्छा खासा बड़ा हेडर होता है, तो उसने बड़े से में प्रिंट कर दिया इसको। फिर दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ये चीज प्रिंट हो गई, ठीक है। देन लिस्ट आपकी अनऑर्डर लिस्ट जो थी, आइटम वन आइटम टू आइटम थ्री तीनों ये जो आपने डाल रखे थे ये डाल रखा आपने। फिर ये देखिए एक मैंने रैंडम इमेज उठा रखा है जो उसमें मैंने डाल रखा है वहां पर उसी डायरेक्टरी में, और वो उसने इमेज प्रिंट कर दी, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसको आपको लिंक होना चाहिए जहाँ पे विजिट एग्जाम्पल डॉट कॉम लिखा होना चाहिए। हाँ, अब इसको मैं क्लिक करूंगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये मुझे यहाँ देखिए ये एड्रेस चेंज होगा, एड्रेस चेंज हुआ यहाँ भी जाएगा, बट एग्जाम्पल डॉट कॉम ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है तो उसको मुझे लेके नहीं जा रहा, सिंपली ये बता रहा है एग्जाम्पल डोमेन है, तो बस एक ये दिखाने के लिए डोमेन बना हुआ है, अदरवाइज ये कोई आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी रियल डोमेन से, ठीक है। अ, अब इसमें देखिए इमेज डॉट जेपीजी आपको दिख रहा है, यही हमने रिफर करा था। लेट मी से मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। दोबारा से अपने वेब पेज पे आ जाते हैं, बैक, देखिए गायब हो गया। अब क्या कह रहा है, एग्जाम्पल इमेज अल्टरनेटिव जो आपने बताया था कि क्या करना है अगर इमेज न दिखे तो वो लिख करके आ रहा है। तो मेरे ख्याल से एचटीएमएल से थोड़ा बहुत तो सभी लोग फैमिलियर रहे होंगे पहले से, तो ऐसा भी जो बिल्कुल पहली बार तो समझ में आ रहा है, राइट। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी, मतलब एचटीएमएल को आइडियली कहा जाए तो एक लैंग्वेज भी नहीं कहा जाता है, बट ठीक है, इट्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको बस वर्बोस मैंने सब कुछ पढ़ करके एक बार बता दिया तो आप समझ सकते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है ना। ये ध्यान रखना है कि हर टैग का जो टैग शुरू होगा वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। HTML इज द आउटर मोस्ट टैग जो सबसे लास्ट में खत्म होगा, उसके बाद हेड शुरू हो रहा, हेड खत्म होगा, बॉडी शुरू हो रहा, बॉडी खत्म होगा, यानी हेड और बॉडी दोनों एक लेवल पे है, ठीक है। हेड के अंदर नेस्टेड अगर है तो टाइटल और कुछ और भी हो सकते हैं टैग्स, वो सारे इसके अंदर आएंगे। बॉडी के अंदर फिर आप जो कुछ चाहे इमेज डालना चाहें, चाहे हाइपरलिंक डालना चाहें, ठीक है। HREF मतलब हाइपरलिंक का रेफरेंस, किस पेज पे जाएगा ये, ठीक है। और ये एक्चुअली इसका टेस्ट है जिसको अंडरलाइन करके दिखा रहे हैं हम, दिख रहा है ना। फिर आपका ये लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है जिसमें लिस्ट आइटम्स हैं, ठीक है, इमेजेस हैं, एज वेल एज, ठीक है, क्लियर है। इसको मैं आज आपके उसमें पोस्ट पेस्ट कर दूंगा, अपने घर पे आप एक बार करके देख लेना। इसमें जरा चेंजेस करना है, इसमें कुछ ट्राई टू प्ले अवे विथ इट, ठीक है, करेक्ट। इसके अलावा ये जो आपको मैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूंगा लेक्चर नोट्स के फॉर्म में, इसमें न सिर्फ जो भी कोड मैं आपको पढ़ाऊंगा वो रहेगा, बल्कि उसके अलावा कई सारे मैंने रेफरेंसेस भी आपको दे रखे हैं।
जैसे लर्निंग साइट्स जो होती हैं, W3C स्कूल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, इजी टू अंडरस्टैंड साइट फॉर लर्निंग अ डिफरेंट सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज। इसमें भी HTML का आपको अच्छा खासा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। फिर कोड एकेडमी, आप उसको सर्च करें, उसमें भी मिल जाएगा। HTML CSS सभी के लिए मिल जाएगा इनफैक्ट। सिमिलरली फिर MDN वेब डॉक्स आता है, फ्री कोड कैंप आता है। तो ये मैंने यहाँ कुछ लिस्ट डाउन कर दिए हैं कि अगर आप चाहें तो इस पे फर्दर लर्निंग के लिए जा सकते हैं। स्पेशली अगर HTML5 के लिए आपको चाहिए तो HTML5 रॉक्स एक अच्छी साइट है। इस पे आप जा करके फर्दर स्टडीज के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है इट्स रियली वेरी वेरी सिंपल, वेरी स्मॉल इन कंटेंट, ठीक है। तो वी आर नॉट गोइंग टू लुक ऑन एवरीथिंग। एंड इसमें यही नहीं, इसके बाद मैंने फिर बहुत सारे एडिटर देखिए। ये जो आप देख रहे हैं टर्म WYSIWYG, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है। तो अभी तो आपको HTML पूरा टाइप करना पड़ रहा है ना। ये कंप्लीट एडिटर्स मिलेंगे आपको, जहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर करके आपको दिख रहा है कि एक टेक्स्ट बॉक्स है, वो आ रहा है, उसकी साइज आपने इंक्रीज कर दी, ठीक है। उसके आगे आप टेक्स्ट लिख रहे हो, एवरीथिंग यू कैन डू विजुअली, ठीक है। तो इस तरह के एडिटर्स को बोलते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एडिटर्स। ऐसे बहुत सारे एडिटर्स मैंने लिस्ट डाउन करे हैं, जिसको आप डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं इस काम के लिए, यानी वेब पेजेस बनाने के लिए विजुअली, ठीक है। अब इसमें कई सारे पेड भी हैं, जैसे एडोबे ड्रीम वीवर है, इट्स अ पेड वन। ट्रायल वर्जन आपको मिल जाता है, बट इट्स अ पेड वन, इट्स अ कॉस्टली एडिटर। But along with the paid editors, I have also listed down a few editors which are free of cost and open source. So there are so many other, ठीक है, उनको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नोट्स आपको दे रहा है, इसमें कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीजें भी आपके पास होंगी, जिसको आप फर्दर आप यूज कर सकते हैं आगे अपने पढ़ने के लिए। अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जैसे पिछले कल पूछा था मैंने कि जब आपके पास व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट काइंड ऑफ एडिटर्स अवेलेबल है, देन व्हाई यू नीड टू लर्न HTML। आपको HTML एज अ लैंग्वेज तो सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बट एंड ऑफ द डे कभी इसकी कोई लिमिटेशन होंगी टूल्स की, ठीक है। आपको कुछ ट्यूनिंग करनी है, ट्विकिंग करनी है, तो उस कंडीशन में आपको कोड समझ में आना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ ABCD की तरह है, ठीक है। इवन कोई उस दिन कोई कह रहा था सर्च सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे कोई कोई इंटरेस्टेड था, कौन कह रहा था? कोई कोई बोल रहा था बहरहाल। तो अगर आप वो भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इन चीज़ों की फ़ैमिलियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अभी रुकते हैं इस पर।